so concepts are not clear to you, then you can just follow NCERT, that 3 times method. Read NCERT for once, just giving a look, just to know that what are the important topics. Then you can just go through that important topics. Then after doing that, read NCERT in the mode of revision. Whether you are able to solve question or not, even after reading that 3 times, it does not matter. Just jump to solving NCERT questions after that, and if in a particular topic, if you are still facing difficulty, then again jump to that concepts, again jump to that theory part. And it never happens in J question that you will get to some difficult questions in 1 or 2 attempts. You will face many questions where you will not be able to get through that concept even till exam. So you will have to identify such questions that these questions, even after trying 5 to 6 times, 10 times I am not getting that, then leave that question. In JEE Mains and Advanced there is a concept called art of leaving questions. You will have to choose that question to attempt and which question to leave. You can't attempt each and every question. As I told yesterday, that JEE Mains and Advanced is not about attempting the whole syllabus. It's about attempting a part of syllabus but with 100% perfection. During your school time, each and every period is not covered by teachers. Some periods are left free. So try to cover the current syllabus, 12th syllabus in school itself. If teachers are teaching that, then do it with 100% focus. If not with 100% focus, then at least with 90% focus. If you pay even 50% focus in class, then you will be able to grasp some important topics in the class itself. Then in free time, in the free periods which you will get, cover current syllabus in that time. So try to utilize your school time for the current syllabus, and when you will return back to home in your self-study time, do the backlog chapters of 11th. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोहित। किस किस चैप्टर्स का तीनों PCM तीनों का एग्जाम है क्या 10th को? हाँ सर। तो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं फिजिक्स में? सर जो चैप्टर मैंने टेलीग्राम पे सेंड करे हैं सारे आ रहे हैं। टेलीग्राम पर सेंड कर दिया क्या? हाँ। पहले जो टाइम टेबल तुम्हें दिया था वो है ना तुम्हारे पास? हाँ सर। ठीक है, उसी टाइम स्लॉट तुम्हारा वही रहेगा। अब उसमें कब क्या करना है वो तुम्हें बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो तुम्हारा फिजिक्स में सर्कुलर मोशन जो आ जाता है, तो फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में पहले तो क्वेश्चन सॉल्विंग तुम्हें सभी चैप्टर्स के करने होंगे ना? हाँ सर। देखो अभी क्या करो कि फिलहाल तो जो चैप्टर्स वीक रह गए हैं, अभी तुम्हारे पास कितने, इस मंथ में आज हो गया 26 तारीख, तो अभी भी अगर आज का दिन छोड़ देते हो तो 3 दिन अभी भी 27, 28, 29, 30 4 दिन अभी भी इस वीक में बचे हुए हैं। इस वीक को ट्राई करो और अगले वीक के 1 दिन, मतलब 4-5 दिन लेकर के चलो। जो वीक टॉपिक्स अभी रह गए हैं उन्हें ख़त्म कर लिया जाए, और उसके बाद जब सारा टॉपिक्स हो जाए उसके बाद जितने भी 9 दिन बच जाएंगे उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर दे दो, जितना क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो। और बीच में जैसे 3-4 दिन क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिया, उसके बाद 1 दिन वापस से रिवाइज कर लेंगे थ्योरी को, क्योंकि थ्योरी रिवीजन भी काफ़ी ज़रूरी है। ये तो तुम्हारा शुरू के जब 4-5 दिन जो कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए उन्हें कर लोगे, उसके बाद का बात हो गया। तो पहले तुम्हारे फिजिक्स में देखते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में मैंने बताया कि तुम्हें थ्योरी जो है वो कवर है, ठीक है? थ्योरी तो सही है, सर्कुलर मोशन का थ्योरी सही है। हाँ सर। तो जो दिक्कत आ रही क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम NCERT लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं क्या? NCERT से मैंने लगा तो नहीं देखी। तो मतलब ऐसा है क्या कि बिल्कुल कोई क्वेश्चन ही नहीं बनते, या फिर कुछ गिने चुने क्वेश्चन है, जैसे 50% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, या फिर कुछ बनते ही नहीं है उसमें? क्या सीन क्या है? सर्कुलर मोशन के अंदर सर बनते ही नहीं है। तो पहले तो इसमें यही करना है कि NCERT पकड़ो, पहले NCERT के क्वेश्चन ले लो, क्योंकि NCERT तुम्हारा बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करते हुए जाता है। NCERT फ्लो बनाता है तुम्हारा। तो पहले तो NCERT करो, और जब एक बार NCERT खत्म हो जाए ना, उसके बाद PYQs लगाना चालू करो। PYQs में देखो यार, PYQs तुम्हारे होते ही डिफिकल्ट लेवल के हैं, तो PYQs क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि वो एक बार में नहीं बनेगा। एक बार में अगर वो बन गया तो फिर वो JEE Mains लेवल का क्वेश्चन आएगा। मेरे वेबसाइट पर जो रिवीजन मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से रिवीजन कर लो। 2-3 पेज में पूरा सीक्वेंस सीरीज रिवाइज हो जाएगा, 1-1.5 पेज में तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज हो जाएगा। और कुछ पूछना है तो फिर पूछो, नहीं तो फिर एक आखिरी मैसेज गुड बाय लिख दो, तो समझ जाऊँगा मीटिंग एंड करना है। ओके, बाय प्रशांति, गुड बाय मोहित। So we'll be ending up with this session. Let's meet up next week with some more good doubts. Okay, enjoy your day and all the best for you.